thank you. You have all understand the what is the law stream, what is the introductory part of law, whatever you are studying in the previous discussion or previous classes in each subject. Yes. Understanding what is the knowledge of law, what is contract, what is tort, what is tutorious liability, what is Indian Constitution, what is the right, fundamental rights, what is the duties as well as the directive principles, knowledge of English, legal English, law. Yes, Dr. Saab, you know very well about the introductory part of law. Okay, thank you. So today discussion about the English languages is going the third topic of your syllabus in the English. That is the one word substitutions. I am come for new one words, new concept of law, that on that behalf you can understand better what is the legal vocabulary also. These words are the not the only one words. This is the enhancement of your knowledge regarding the legal aspects. When you practice, when you will practice in the High Court, this language is definitely you will follow, because that is the legal vocabulary. You cannot use general English, because our law English was transferred into common law to British law, or common law you can say to the Indian law. Yes. Sorry to interrupt, but many students are waiting to join. Only 2 students are waiting. I have just joined the students. Okay, sir. Whenever हेलो, आप रिक्वेस्ट तो भेजिए. When you will touch upon these words, and you focus and concentrate always these words, because these words are used as Latin terminology also, general English also, legal English also. So these words, just some of the words are Latin words, some of the words are translated in the English words, and some of the words are the general words. And these words are definitely enhance your knowledge about the English, about the legal aspects. Just like I am taking these new one words, so we are discussing about new word that shows the Latin terminology. The history and origin of legal aspects in India. Firstly, the codifications of the law were developed in the Greek, as a Greek law. Okay. And after that, that Greek terminology shifted into, Greek means that Latin terminology. Most of the words which are important words are from in the Latin terms, because the development of law was firstly in the Greece, Latin, Yunan, and after that, that codified law shifted into the common law. Common law means British law. And after that, the Britishers have ruled out in 300 years in India. So firstly, they codified the law in 1860 in India as a civil justice system as well as the criminal justice system. So totally credit goes to the British government to apply these kinds of the criminal justice establishment of civil justice system as the judicial system as the criminal justice system. Okay, हम सोचते हैं अंग्रेज कुछ दे के नहीं गए, but most of the things they have shifted into just like codified law. All the just you are studying about the legal history or constitutional history, you will go through all the aspects which are important to codification of law in India. So these words are quite important words. मृतिका को कह दो क्लास अटेंड कर ले, जूम ऐप पे ना मैंने कोड भेजा हुआ है. हाँ. So first word is
related to your special contracts, which is the one word that shows the caveat emptor. Caveat emptor means just let the purchaser be aware. This is the very ancient concept. Let the purchaser be aware. The person who want to purchase the things. Students, my English is very simple. You can understand very betterly. Okay, I am not using that difficult vocabulary in my English. So you can learn more and more things in the simple way to English. Okay. So listen, what is the let the purchaser be aware? Be aware. Purchaser mean क्या होता है? खरीदने वाला. ठीक है ना? Be aware में ना होता है सावधान रहना. Okay. Let the purchaser be aware. It means the concept of the one word and concept of this terminology is the caveat emptor. Caveat emptor. Caveat emptor is a legal Latin terminology. Latin terminology. Just we have discussed in previous class Damnum sine injuria or sine damnum injuria. That was also the Latin terminology. So this is also the Latin terminology. So from the very ancient time, this concept was used in this scenario in India or throughout of the world. But now the circumstances are changed right now. Similarly, when the purchaser be aware, similarly, the seller also to be aware nowadays, because we are living in this mobile era. इस मोबाइल युग में रहते हैं. Where all the goods are in the packaging goods. We cannot check properly what is inside of that box. Okay, just you are clicking in the many apps and you want to purchase any kind of goods, just like a mobile, and you cannot see the proper mobile immediately. Okay, you can check only the ranking of that mobile and the configurations of the mobiles right now on your mobile. Okay, but you are aware about that. This concept is definitely automatically enforced you that you are the aware. But similarly, when the seller is going to sell the things, also concentrate and be aware when he or she is selling the goods towards you. देखिए, अब ये कंसेप्ट पहले चली आ रही थी कि परचेजर को जो खरीदने वाला है, जो खरीदने जाएगा मार्केट में, वो चीज को अच्छी तरह चेक कर ले, है ना. मान लो आप वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो, है ना, आप कोई किराने की आइटम खरीदने जा रहे हो, आप दाल खरीदने जा रहे हो, आप कोई ऑयल खरीदने जा रहे हो, आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते थे, है ना. ये कंसेप्ट उस पे लागू हो रही थी. बट हम अब रहते हैं इस मोबाइल एरा में, इस युग में, ठीक है ना. यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. वी कैन नॉट चेक प्रॉपरली द थिंग्स. हम नहीं चेक कर सकते. आप मॉल में जाते हो तो वहां पर आप ये नहीं चेक कर सकते कि हमारी जो क्वालिटी क्या है. चीज की क्वालिटी नहीं चेक कर सकते. आपको डिब्बा बंद चीज खरीदनी पड़ती है. लेकिन वहां पर जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? दिस कंसेप्ट शिफ्टेड टू द नॉट द परचेजर. दिस कंसेप्ट शिफ्टेड टू द सेलर. Understand? So let the purchaser be aware is the caveat emptor. This is the important, very important questions, very big question, large questions you will found in the contract second as well. ये वाला जो caveat emptor है ना, इस पे आपका क्वेश्चन आएगा जब आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पढ़ोगे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट चलते हैं. द मर्डरर ऑफ इन्फेंट्स. इसको क्या बोलेंगे हम? मर्डर ऑफ इन्फेंट्स. क्या होता है ये? भ्रूण को मारने वाला. इन्फेंट्स, भ्रूण हत्या बोलेंगे. दैट इज द इन्फेंटिसाइड. दैट इज इन्फेंटिसाइड. दिस इज ए इंपॉर्टेंट वर्ड्स. नेक्स्ट, ए कॉन्स्टिट्यूशंस विच प्रोवाइड फॉर द गवर्नमेंट एज the center as well as the state. You are just discussed about the Indian constitutions. Federal है या एकात्मक और संघात्मक संविधान पढ़ते हो ना आप, तो बताइए, a constitutions which provide for the government, the center as well as the state.
Here in India, state government is also different from the central government. So Indian constitution is a part of the फेडरल, संघीय जिसको बोलते हैं अपने, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है इंडिया, एकात्मक होते हुए भी संघात्मक भी है। तो इस गवर्नमेंट को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे अपने? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ गई या नहीं समझ आई? इन दोनों तीनों वर्ड्स में से किसको क्या समझ में नहीं आया? आ गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज to import the goods illegally without payment of the custom duty. Anybody want to share about this sentence? The same smuggling, sir. Yes, offline student. No idea. Excuse me, sir. The import of goods. इंपोर्ट में ना क्या होता है? आयात करना, चीजों को विदेशों से यहां मंगाना। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में ना होता है माल। व्हाट इज गुड्स? गुड्स में ना अच्छा, ये अच्छा नहीं है, यहां मैं प्रेफर किसको कर रहा हूं? ये माल को कर रहा हूं। व्हाट इज माल? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर योर व्यूज अबाउट गुड्स? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट टॉपिक। व्हाट इज गुड्स? Anything which has been produced, sir, where the raw material has been used. ओके ओके, मैं इसकी कंसेप्ट आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। आपको बता सकते हो ऑफलाइन स्टूडेंट में से गुड्स क्या है? यस, ओके, यस, एनीबॉडी वांट टू शेयर व्हाट इज गुड्स? गुड्स में ना क्या होता है? अच्छा, अच्छा होना। देखिए, गुड्स मैं बताता हूं गुड की डेफिनेशंस क्या है। गुड्स क्या है? 3 थिंग्स आर नॉट गुड्स। ओनली 3 थिंग्स आर नॉट गुड्स। जस्ट लाइक फर्स्ट वन, द करेंसी विच यू आर इन द यूज। हमारे जो नोट है ना, नोट क्या है? वो माल नहीं है, गुड्स माल नहीं है। एक एक्शनेबल क्लेम्स, जिसको बोलते हैं अनुयोज्य दावा, वो माल नहीं है। ठीक है? एक हम अलाइव पर्सन, वो माल नहीं है। बाकी दुनिया की हर चल संपत्ति माल है। समझ गए आप? करेंसी, जीवित प्राणी, अपना एक्शनेबल क्लेम्स, इन चीजों को छोड़ दीजिए। बाकी दुनिया की हर चीज क्या है? जो चल संपत्ति है, चलने वाली, वो क्या कहलाएगी? माल कहलाएगी। ये कंप्यूटर, ये चेयर्स, टेबल, हर चीज माल है, गुड्स है। ठीक है ना? तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। यानी जब हम बाहर से कोई चीज मंगाते हैं, जब हम यहां से भेजेंगे तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। जो कोई चीज हम यहां मंगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। ठीक है? अब बाहर विदेशों से अगर हम चीज मंगाएंगे विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी, अगर कोई चीज यहां पर लेके आता है तो उसको क्या बोलेंगे? अगर वो पे कर देता है, दैट इज लीगली गुड्स टू इंपोर्ट। ओके, अगर वो इंपोर्ट करता है और जो प्रेफर्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित शुल्क है, कस्टम ड्यूटी है, अगर वो पे नहीं करता तो उस कार्य को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? स्मगलिंग। नेक्स्ट, ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स। ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, क्या कहेंगे उसको? Orphan. पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूमस, जिसके मां बाप नहीं है, पोस्थ्यूमस, अनाथ बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट, ए ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट, ए ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, पहले आप इसको समझने की कोशिश करना, फिर इसका आंसर मिलेगा। देखिए, एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है इन द सिविल मैटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविल मैटर, नॉट द क्रिमिनल मैटर्स। कोर्ट बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट से पहले कोई ऐसा ऑर्डर दिया जाता है जो सिविल मैटर्स में है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरलोकेटरी शूट बोलते हैं।
इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर, सॉरी, इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर वन वर्ड्स। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट ने कहीं कहीं से इलीगल दूध जो व्यापार कर रहा था पर्सन, कोई उसका इलीगल दूध को जब्त किया, सीज किया, उसके संबंध में केस फाइल कर दिया। जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल। अब देखिए, जजमेंट आने में तो टाइम लगेगा, दूध खराब भी हो सकता है, ठीक है ना। अब उससे पहले दूध को सेव किया जाना जरूरी है ना। उस दूध को, या जो कोई भी खराब होने वाली कोई भी चीज है, खराब होने वाली कोई भी चीज है, उसके संबंध में भी वो खराब ना हो, उससे पहले उसको सेव किया जा सके, तो गवर्नमेंट फाइनल जजमेंट से पहले एक ऑर्डर पास कर देती है, सॉरी कोड। तो उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को क्या बोला जाता है? इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्वर्तीय आदेश। क्या बोलते हैं? अंतर्वर्तीय आदेश। ये याद रखना, ये बातें ये आपके काम आएंगी। नेक्स्ट, टू मच इंक्रीज इन द एरिया ऑफ प्रॉपर्टी। टू मच इंक्रीज इन द एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको? कैपिटलिज्म। जो इंक्रीज कर रहा है किसको? एरिया ऑफ प्रॉपर्टी को, तो वो क्या है? पूंजीवाद, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूंजीवाद बोल देते हैं। कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, व्हाट इज कैपिटलिज्म? द पर्सन हु आर इंक्रीजिंग द मनी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी डे बाय डे is called capitalism. Next, a suit filed for the purpose of the determinations of the title of the co-defendant. सूट में ना क्या होता है? पहनने वाला सूट। पहनने वाला सूट की बात कर रहा हूं? नहीं, ये किसी वाद की बात कर रहा हूं। ए सूट फाइल्ड बाय द पर्पज ऑफ द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में ना होता है डिटर्मिन करना, निर्धारण करना, ऑफ द टाइटल ऑफ द को डिफेंडर। एक पर्सन कहता है कि इस प्रॉपर्टी के मैं मालिक हूं, कोई कहता है मैं मालिक हूं, कोई कहता है मैं मालिक हूं। तो कोर्ट में एक दावा लाया जाता है, केस लाया जाता है, किसको? डिटर्मिन करने के लिए ये प्रॉपर्टी के कितने वारिश हैं। उस सूट को क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटरी सूट बोलते हैं। भाई ये डिक्लेयर किया जाए, कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाए कि इस प्रॉपर्टी के कितने वारिस हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटरी सूट। समझ आ गया? नेक्स्ट, टोटल रिपुटेशंस ऑफ द ऑब्लिगेशंस और मैरिज। रिपुटेशंस का मतलब क्या होता है? टोटल रिपुटेशन। क्यों हंस रहे हो? बताइए। रिपुटेशंस एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन में ना क्या होता है? दायित्व। जो पर्सन दायित्वों को निर्वाह करने से भाग रहा है, जो मैरिज के ग्राउंड्स पर जो अपने दायित्वों को निर्वाह नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? डेजर्शन, परित्याग कर देना। बट मोस्टली क्या होता है? पति पत्नी को डेजर्शन कर देता है, ठीक है ना। एक तो छोड़ देना। छोड़ा कैसे? इन हिंदू लॉ द मैरिज इज ए नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। इन हिंदू लॉ मैरिज इज ए संस्कार, नॉट द कॉन्ट्रैक्ट। इन द yes, in the Muslim law the marriage is a contract. Okay, so the person who are not obliged or not giving the full obligations which have decided in the customs, so the person, the concept is called of the growth between childhood and youth. The baby which is growing to the childhood and after youth. So what would you say about that? That the durations of a baby. What would you say about this concept? Adolescence. Adolescence. Just like teenager. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 and 20. 20 आ गया, वहां पर teen नहीं आया. The age of teenager is called the adolescence child. That is the concept which is growing a child to childhood to youth is called adolescence child. Understand? Next, a person who makes a complaint against someone in the civil court. A person who has violated right or victim or aggrieved person in the civil matter, who filed a suit to the another party. What is the concept of filing suit? What would you say about that? In the civil matter, plaint, क्या बोलेंगे इन हिंदी? वाद. कोई भी पर्सन जो कि एक कंप्लेंट करता है किसी के अगेंस्ट सिविल कोर्ट में, उसको क्या बोलेंगे? प्लेंट. और अगर इसके आगे मैं TIFF लगा देता हूं तो क्या बन जाएगा ये? प्लेंटिफ. और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वादी. क्या बोलेंगे? वादी. एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी. एक होता है वादी, वो उसको क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ. और प्रतिवादी को क्या बोलेंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेस्पोंडेंट भी बोल देंगे और एक और वर्ड डिफेंडेंट भी बोल देंगे. वादी और प्रतिवादी. समझ आया बच्चों सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप. सर आपने पॉइंट नंबर 2 इन्फेंटिसाइड जो करवाया है, इन्फेंट का मतलब तो न्यूबॉर्न बेबी होता है. हाँ, न्यूबॉर्न बेबी. नहीं, उसको तो फेटिसाइड हुआ ना? नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूं, ये वाला इसकी बात इन्फेंट्स, जो न्यू बेबी कह सकते हो, भ्रूण भी कह सकते हो इसको. द मर्डर ऑफ